Hi guys, welcome to the next video in this Daily Daddy practice series. First, pause this video, try this at yourself and then proceed on with the rest of the solution. Now let's start solving this set. Let's read the data first and then we'll move on to the table, right? 6 sprinters A, B, C, D, E and F participated in the running race. There were 4 rounds in the race, round 1, round 2, round 3 and round 4. In each round, the sprinters were given a rank from 1 to 6 based on the time taken by them to finish the race. That is, who finished the round first was given rank 1, who finished second was given rank 2 and so on till this rank 6. In each round, these sprinters based on their ranks from 1 to 6 were awarded 10, 8, 6, 4, 2 and 1 points respectively. So we can simply go ahead and write down all the points for simplicity's sake. So rank 1, 2, 3, 4, 5 and 6, the points will be in decreasing order. So even numbers, but the last one is an odd number. So maybe it has to do something with odd numbers and even numbers. 10, 8, 6, 4, 2 and 1. These are the points. These are the ranks. Now the following table shows the partial information of the ranks attained by the top 5 persons in terms of cumulative points scored in all the 4 rounds combined. Right, out of the 6 sprinters. So data अगर आप ध्यान से देखो तो टोटल वी हैड 6 sprinters A B C D E F, राइट, बट यहाँ पे आपका डेटा किसके लिए दिया हुआ है? A से E तक का डेटा दिया हुआ है. मे बी इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मे बी F का आपका डेटा या क्वेश्चंस पढ़ के पता चलेगा, राइट. सो A से E तक का डेटा दिया हुआ है एंड द पॉइंट्स आर एक्चुअली द क्यूमुलेटिव पॉइंट. सो रैंक के बेसिस पे आपको ये पॉइंट मिल रहा है, तो रैंक के करस्पॉन्डिंग पॉइंट था. सो ये वाले आपके क्या है? एक्चुअली में रैंक्स है, राइट. ये रैंक्स दिया हुआ है, बट यहाँ पे आपका क्यूमुलेटिव पॉइंट. सो एड अप ऑफ ऑल दीज राउंड्स जो भी पॉइंट्स आएगा, दीज आर द रिस्पेक्टिव पॉइंट्स ऑफ दीज 5 people, sorry. Okay, and for each row the last column gives the total number of points in all the rounds taken together. That is perfectly fine. So the first thing I'll do is मैं यहाँ पे इस टेबल में ना रैंक्स और उनके करस्पॉन्डिंग स्कोर्स भी मेंशन करूँगा, बिकॉज अल्टीमेटली स्कोर्स एड अप करके आपका टोटल पॉइंट्स आएंगे, राइट. सो फर्स्ट रैंक पे कितना मिलता है? लेट्स राइट द पॉइंट्स इन द ब्रैकेट्स. तो ब्रैकेट में वैल्यूज में पॉइंट स्कोर रिप्रेजेंट करने के लिए लिखूंगा. सो थर्ड रैंक इज 6 points, सेकेंड रैंक इज 8 points, फोर्थ रैंक इज 4 points and second rank is 8 points. This is how the initial scenario looks like. We have a few conditions. Let's read them. Each sprinter finished within the first 3 positions in exactly 2 of the 4 rounds. So जो भी पर्सन का आपका डेटा मेंशन्ड है, तो अगर आप नोटिस करो क्या दिया हुआ है? Each sprinter finished within the first 3 positions in exactly 2 of these 4 rounds. तो हर एक पर्सन क्या है? They will finish within the first 3 positions. That means 10, 8 and 6 में से कोई 2 वैल्यूज आएंगी 2 राउंड में, एंड रिमेनिंग 2 राउंड में 4, 2 and 1 में से कोई 2 वैल्यू आएंगी. दिस इज वेरी क्रूशियल टू दिस सेट. तो अपर हाफ में से हमेशा 2 वैल्यू आएगी और लोअर हाफ में से भी हमेशा 2 वैल्यू आएगी फॉर ईच ऑफ दीज स्प्रिंटर्स, राइट. एंड द सेकेंड पॉइंट सेज no 2 sprinters got the same rank in any round. These are very standard conditions, आपने बहुत बार देखा होगा. No 2 sprinters got the same rank in any round, मतलब कभी भी कॉलम में रिपीटिशन नहीं आएगा. तो राउंड 1 में ये पांचों का डिफरेंट आएगा. पांचों का क्या एफ भी है, तो 5 का निकाल लोगे तो ऑटोमेटिकली एफ का तो पता चल ही जाएगा ना. यही लॉजिक होने वाला है, इसलिए एफ का देने की जरूरत नहीं पड़ी होगी. 5 का निकाल लोगे तो जो भी रैंक बची रहेगी फ्रॉम 1 to 6, दैट विल बी अलॉटेड टू एफ, राइट. दैट इज परफेक्टली क्लियर. बट कभी भी रेपिटेशन नहीं होगा किसी भी कॉलम में. एंड थर्ड पॉइंट, नो स्प्रिंटर फिनिश 2 or more rounds at the same position. मतलब कोई भी स्प्रिंटर के लिए इस रो में अगर आप देखोगे किसी भी 4 राउंड में कोई भी 2 वैल्यूज आपकी सेम नहीं है. दे हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस. तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कहाँ से करना चाहूँगा? आई लुक एट दीज नंबर्स एंड दिस कंडीशन, राइट. ये कंडीशन कि हर प्लेयर का जो भी पॉइंट्स है वो उसमें से 4 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट आपका अपर हाफ से आएगा हमेशा, 2 पॉइंट लोअर हाफ से आएगा. ऑल्सो वन इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई नोटिस इन दिस पर्टिकुलर केस इस यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स जो भी मिल रहे हैं ना हमेशा इवन है, एक्सेप्ट फॉर दिस वन. तो जहाँ पे भी जिस पर्सन को ऑड पॉइंट्स मिले हैं 21 या 19 या 23, आई एम प्रिटी श्योर कि उसमें क्या है, एक 1 तो आपका फिक्स रहेगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू दिस सेट.
एंड जैसे नॉर्मली हम इन सेट्स को स्टार्ट करते हैं, वी स्टार्ट विद द बिगेस्ट नंबर्स और द स्मॉलेस्ट नंबर्स फॉर दैट मैटर. लेट्स सी कि कैसे कैसे पॉसिबिलिटीज बन रही है, कैसे किन नंबर्स के कॉम्बिनेशन से ये पॉइंट्स आएंगे. यू हैव टू राइट दैट डाउन एंड विल प्रोसीड अकॉर्डिंगली. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस 23. नाउ आउट ऑफ दिस 23, 4 तो आपको ऑलरेडी पता है, राइट 4 पता है, तो आपको 3 स्कोर्स और लिखने हैं. 23 माइनस 4 कितना बनेगा आपका? 19 बनेगा. नाउ अभी मैंने बोला बिकॉज रिमेनिंग स्कोर एक ऑड नंबर है एंड यहाँ सारे नंबर्स में से एक ही ऑड नंबर है, दैट इज 1. तो आई कुड से डेफिनेटली आपका 1 तो आने ही वाला है. और अगर आप ध्यान से देखोगे लोअर हाफ में से 2 वैल्यूज ऑलरेडी आ चुकी हैं, 4 एंड 1. तो 4 एंड 1 आपका आ चुका है. दैट मीन्स रिमेनिंग आपका जो 18 बनना है वो अपर हाफ से ही आना चाहिए, राइट. तो 18 अब कैसे बनाओगे? तो 18 अगर अपर हाफ से इन 3 में से 2 नंबर का एडिशन 18 आना चाहिए. वेरी सिंपल टू से कि 2 नंबर कौन से होने वाले हैं? 10 एंड 8. सो यहाँ पे आपका नंबर क्या आ जाएगा? 10 एंड 8 एंड 1, 3 नंबर. इसमें भी सारी पॉसिबिलिटीज क्यों लिखे हैं? अगर आप थोड़ा सा नोटिस करोगे तो ऐसे कॉलम में कभी भी रेपिटेशन नहीं होना चाहिए था. कंडीशन थी आपकी सेकेंड वाली कंडीशन. दैट मीन्स इसका जो 8 है ना वो यहाँ आ सकता है ना वो यहाँ आ सकता है, तो इसका 8 हमेशा यहाँ पे आएगा. सो यहाँ पे इसको 8 पॉइंट्स मिलेंगे एंड 8 पॉइंट्स कब मिलते हैं? सेकेंड रैंक से. एंड द रिमेनिंग 10 एंड 1 कुड बी इन एनी ऑर्डर. अभी मैं इसको प्लेस नहीं कर पाऊंगा, सो आई जस्ट राइट द डाउन अभी 10 एंड 1 एंड लेट्स इरेज दिस. लेट्स ट्राई टू कीप दिस वेरी क्लीन. Okay, now 23 के बाद the next highest number becomes what? 22. 22 के लिए सोचते हैं. Now out of this 22 again आपको 3 नंबर चाहिए. Out of this 22 6 आपको ऑलरेडी पता है, तो मतलब 16 बनाना है आपको रिमेनिंग का, राइट. अब 16 है, तीनों ही आपके इवन नंबर आने वाले हैं. अब ये देखो 6 है, 6 आपका अपर हाफ से आया, राइट. लोअर हाफ से 4, 2 एंड 1 आ सकता है, बट हमने बोला कि आपका रिमेनिंग वैल्यू 16 है. कोई भी ऑड नंबर नहीं आना चाहिए बिकॉज बाकी दोनों तो इवन नंबर होंगे. दैट मीन्स लोअर हाफ से 2 नंबर भी उठाना है और 1 नहीं उठा सकते. तो ये तो बहुत सिंपल हो गया. गारंटीड है कि यहाँ पे क्या उठेगा आपका? 4 एंड 2 वैल्यूज 4 एंड 2 जैसे फिक्स होगा, थर्ड वैल्यू मिल जाएगा आपको. तो 16 माइनस 6 दैट इज 10. तो ये जो रिमेनिंग वैल्यू है आपकी 22 की बनने के लिए, इसमें क्या आने वाला है? 10, 4 एंड 2. अब 10, 4 एंड 2 में अगर आप नोटिस करो यहाँ पे नहीं बोल पाएंगे हम. इसमें सिर्फ 10 नहीं आ पाएगा, 4 एंड 2 तो कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है. तो अभी क्या करते हैं? लेट्स जस्ट सिंपली राइट दैट डाउन. तो 10, 4 एंड 2 ये 3 नंबर हमें यहाँ पे फिल करने हैं. एंड लेट्स इरेज दिस अगेन. विल फर्स्ट राइट ऑल द पॉसिबिलिटीज, देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट हाईएस्ट स्कोर. जैसे कि ये 21 है. अब इस 21 के लिए अगर हम नोटिस करें तो 21 के लिए क्या है आपका? 10 पता है आपको. तो रिमेनिंग 3 वैल्यूज का आपका एडिशन कितना आ जाना चाहिए? 21 माइनस 10 वुड बी 11. अब अगेन 3 वैल्यूज आपकी बची हुई हैं, राइट, और एक ऑड नंबर बच गया आपका, तो इसमें डेफिनेटली आपका क्या आएगा? 1 आएगा, राइट. अब 2 वैल्यूज आपको चाहिए. अब 2 वैल्यूज आप 11 कैसे बनाओगे? तो अगेन लोअर हाफ से एक 1 ही आया है, तो इन दोनों में से कुछ ना कुछ तो आएगा. चेक कर लेते हैं. मे बी अगर मैं 2 रखूं तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? 8. और अगर मैं 1 फिक्स करके, 1 तो फिक्स रहेगा ही, अगर मैं 2 की जगह यहाँ पे 4 रखता तो यहाँ क्या आ जाता आपका? 6. तो 8, 2, 1 और 6, 4, 1 यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है इसके लिए, राइट. 2 पॉसिबिलिटी है. लेट्स चेक जस्ट क्विकली. 6 and 4 यहाँ पे बना सकते हैं. Yes, right now we could say there are 2 possibilities. Let's say 8, 2, 1 या फिर 6, 4 and 1. 6, 4 and 1. There are 2 possibilities here. Let's keep it that way. Right now, let's move on to the next highest number. तो 22, 21 हो गया. नेक्स्ट हाइस्ट पॉसिबिलिटी बिकम्स इज 20. और 20 माइनस 8, रिमेनिंग वैल्यू कितनी बची आपकी? 12 बची. 8 आपने यहाँ से उठाया है, लोअर हाफ से 2 वैल्यू चाहिए. अगेन 12 इवन नंबर है तो 4 एंड 2 ही आएगा. ये अगेन ईजी हो गया क्योंकि फिर 2 वैल्यू फिक्स हो जा रही है. 4 एंड 2 6, तो ये बचा वैल्यू भी क्या आएगा? 6. तो यहाँ पे 6, 4 एंड 2 आना चाहिए. 6 एंड 4 एंड 2 थोड़ा मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे 6 नहीं आ सकता और यहाँ पे 4 भी नहीं आ सकता. सुडोकू का लॉजिक. तो 6, 4 नहीं आ सकता, तो यहाँ पे एटलीस्ट मैं डेफिनेटली क्या लिख दूँ? 2 लिख सकता हूँ. एंड 2 किससे आता है? रैंक 5 से. एंड 2 के बाद आपका क्या बच रहा था? 6 एंड 4. क्या मैं 6 एंड 4 प्लेस कर सकता हूँ? नो, इट हैज़ 2 पॉसिबिलिटीज. सो आई जस्ट लेट दिस बी 6 एंड 4.
बाद में फिल करेंगे. विल फर्स्ट राइट डाउन ऑल द चॉइसेस. नाउ देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी लेफ्ट. लेट्स सी टू दैट. 19 बचा है, अगेन एक ऑड नंबर है और रिमेनिंग आपका यहाँ पे मतलब एक वैल्यू आपका 8 है. तो 19 माइनस 8 वुड बी 11. 11 में आपको ऑड नंबर है तो 1 तो डेफिनेटली आएगा. बस अब आप चेक कर लो 11 कैसे बनेगा. अगेन याद रखना आप रो में रिपीट नहीं कर सकते. तो 8 and 2 इज डेफिनेटली रूल्ड आउट. 8 and 2 वाली पॉसिबिलिटी हम यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज 8 इज ऑलरेडी देयर. तो अब 1 के साथ 2 नहीं आ सकता बिकॉज फिर 8 आता. 1 के साथ फिर आपका 4 आएगा और 4 के साथ एडिशन आपको 11 बनाना है टोटल का. सो इट वुड ओनली बी 6. तो यहाँ पे एटलीस्ट 6 4 and 1 आएगा. 6 4 and 1 में अगर नोटिस करो तो यहाँ 6 और यहाँ 4 दोनों नहीं आ सकता बिकॉज इस कॉलम में ऑलरेडी है. तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. एंड दैट 1 स्कोर इज थ्रू दिस रैंक 6. ठीक है, तो 1 आपका फिक्स हो गया. 6 and 4 विल हैव अगेन पॉसिबिलिटीज. तो 6 and 4 हम यूनिकली नहीं बोल पाएंगे. राइट नाउ लेट्स प्रोसीड. एक बार क्विकली चेक कर लेते हैं कैन वी फिल एनी ऑफ दीज नंबर्स. जैसे इसमें 8 2 1 या 6 4 1. 8 2 1 एंड 6 4 1 क्या मैं यूनिकली फिल कर पाऊंगा? 8 2 1 अगर 8 2 1 आया या 6 4 1 आया. ओके ओके, थोड़ा यहाँ पे आप देखो लॉजिक दिखेगा. यहाँ पे जैसे हमने यहाँ नीचे नंबर्स फिल किया ना, देन दिस मेक्स सेंस कि इसमें से एक ही पॉसिबिलिटी जाएगी. क्यों? क्योंकि अगर आप नोटिस करो तो इसमें 6 भी है, इसमें 4 भी है और इसमें 1 भी है. तो इस वाले प्लेस पे तीनों नंबर नहीं आ सकते ना. तो अगर ये सेकेंड वाली पॉसिबिलिटी होती तब तो आप यहाँ पे कुछ फिल ही नहीं कर पाते 6 4 1 में से बिकॉज वो ऑलरेडी कॉलम है. दैट मीन्स आई कैन रूल दिस आउट. 6 4 1 नहीं बनेगा. यहाँ क्या बनेगा? 8 2 and 1. लेट्स रिमूव दिस. तो ये एटलीस्ट अपने को नंबर क्लियर है कि क्या फिल होने वाला है. आई होप दिस इज क्लियर. तो यहाँ पे 8 2 और 1 ही फिल होगा. और यहाँ पे अगर नोटिस करें 8 2 and 1 में 2 and 1 ऑलरेडी फिल्ड है. तो यहाँ क्या फिल होगा आपका? 8 ही फिल होगा. तो 8 यहाँ पे आ जाएगा. एंड 8 कैसे आता है? रैंक 2 से. अब यहाँ पे 8 भी आप चाहो तो हटा सकते हो. राइट, ऑब्वियसली आई हैव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ यूजिंग इरेजर. यू डोंट हैव दैट इन एग्जाम. तो थोड़ा तो साफ सुथरा नहीं होगा एग्जाम में, बट ट्राई टू मेक इट वेरी नीट सो दैट कहीं पे भी गलती हो तो इट इज़ ईजियर टू बैक ट्रैक. आई हैव टू एक्सप्लेन इट, सो आई एम कीपिंग दिस वेरी क्लीन. आपको सिंपल, आपको समझ में आना चाहिए. तो दैट पर्पज, राइट. ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड. एक बार हाँ फाइनली चेक करते हैं. 2 and 1 नहीं कर सकते फिल. 10 4 and 2. 10 4 and 2. इसमें 10 नहीं आ सकता बट 4 and 2 आ सकता है. इसमें 8 है, इसमें नहीं. 6 and 4 पॉसिबल. 6 and 4 पॉसिबल. 10 and 1 अगेन पॉसिबल. सो यहाँ से वी हैव रीच्ड अ स्टेलमेट काइंड ऑफ सिचुएशन. तो यहाँ से आई नीड टू डू अ बिट ऑफ हिट एंड ट्रायल. तो अब हिट एंड ट्रायल करने के लिए आई नीड टू मेक 2 केसेस. तो ऑब्वियसली आई विल गो अहेड एंड मेक अ डिफरेंट डायग्राम. तो डिफरेंट डायग्राम इसी चीज़ के लिए बना लेते हैं. A B C D and E. लेट्स do this quickly. A very bad diagram. Fine. राइट, तो यहाँ पे 2 and 1 फिल करना है. यहाँ पे 10 4 and 2 फिल करना है. यहाँ पे 6 and 4 फिल करना है. यहाँ पे भी 6 and 4 फिल करना है. यहाँ पे 10 and 1 फिल करना है. रिमेनिंग जो फिक्स एटलीस्ट वैल्यूज़ हैं पिछले केस वाली वो लिख लेते हैं. सो यहाँ पे 1 10, यहाँ पे 2 8, यहाँ पे 3 6, यहाँ पे 5 2, यहाँ पे 6 1, this is 4 followed by 4 and यहाँ पे 2 and 8 is there, यहाँ पे 2 and 8 is there and finally यहाँ पे 5 2 के साथ में 2 and 8 is there. ठीक है, अब दो पॉसिबिलिटीज़ मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा जहाँ पे दो केसेस ही बच सकते हैं. लेट्स स्टार्ट विद A1 इटसेल्फ. जैसे यहाँ पे 2 and 1 का ऑर्डर दो पॉसिबल था, इसीलिए हमने दो डायग्राम बनाया. आई होप यू आर गेटिंग द लॉजिक कि हमने दो टेबल्स एक्चुअली में फॉर्म क्यों किए. तो एक केस में मैं यहाँ पे 2 और 1 लिख दूंगा एंड यहाँ पे मैं 1 and 2 लिख दूंगा. ठीक है, एंड लेट्स फिल दिस सेपरेटली. सो 2 वाला कितने से आएगा आपका? 5 से आया.
और ये 1 वाला कितने से आता है आपका 6 से आता है। नाउ लेट्स ट्राई टू फिगर आउट ऑल द वैल्यूज़। तो एक एक करके एक एक टेबल में स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे भी लिख लेते हैं पहले। तो 1 आपका 6 से आता है और 2 वाला आपका 5 से आता है। लेट्स टेक अ होल्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर टेबल। सबसे पहले अब यहाँ से चेक करना स्टार्ट कर देते हैं सीधे। जैसे कि यहाँ पे जब आपने इसको फिल करा तो इसमें 1 नहीं आ सकता और इसमें 8 नहीं आ सकता, राइट। इस कॉलम में 1 और 8 रिपीट नहीं हो सकता। तो लास्ट वाला वैल्यू अगर देखो तो 10 और 1 की पॉसिबिलिटी थी, तो इसमें आपका 1 नहीं आ सकता। तो यहाँ क्या आएगा 10 आएगा। 10 कैसे आता है रैंक 1 से। तो यहाँ 10 आ गया, मतलब यहाँ फिक्स हो गया, दिस वुड बी 1 एंड दैट इज रैंक 6। ये हो गया आपका पूरा फिल, दिस इज डन। ये वाला भी इट इज कम्प्लीटली डन। देन 10, 8 और 1 आ गया, 10, 8 और 1, ओके 10, 4 एंड 2, ओके 10, 4 एंड 2। इसमें हम कुछ बोल पाएंगे 10, ओके। अब इसका अगर आप नोटिस करो, जैसे इस वाले कॉलम में भी ऑलरेडी 10 प्रेजेंट है, तो यहाँ नहीं आ सकता। इस वाले कॉलम में भी एक ऑलरेडी 10 प्रेजेंट है, तो ये 10 यहाँ नहीं आ सकता। तो इस रो का ये जो 10, 4, 2 का जो 10 है वो इन दोनों जगह नहीं आ सकता। तो 10 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। एंड ये रैंक अगर 10 है, दिस वुड बी फ्रॉम 1, राइट। ये करेक्ट सिचुएशन अपने पास पहुंची। तो यहाँ से आप 10 को क्रॉस आउट कर सकते हो। अब यहाँ से मैं क्या लॉजिक लगाने में इंटरेस्टेड हूँ, देखो मेरे को सुडोकू इसीलिए हेल्पफुल लगता है। यहाँ पे मैं सुडोकू की तरह फिल करूँगा। जैसे यहाँ पे 3 नंबर है, वी नो ये तीनों नंबर डिस्टिंक्ट होने चाहिए। अगर आप ये जो 6 नंबर है इसमें देखो, अगर आप एक्चुअली में पॉसिबिलिटीज डिफरेंट नंबर की है क्या, 4, 2 या 6, आपको यही 3 नंबर तो दिख रहे हैं, दैट इज 4, 2 एंड 6। तो ये 4, 2 एंड 6 यहाँ पे ही एक्चुअली में फिल हो रहे होंगे, 4, 2 एंड 6। अब किस ऑर्डर में फिल होंगे मुझे ये नहीं पता, लेकिन बट 4, 2 एंड 6 आएगा। ऑल्सो इन दोनों में 4 एंड 6 तो जाएगा। अब चाहे यहाँ पे 4 जाए, यहाँ 6 जाए, या यहाँ पे 6 जाए, यहाँ पे 4 जाए, तो 4, 2 एंड 6 में इन दोनों में 4 एंड 6 ही जाएगा, दोनों डिफरेंट नंबर। दैट मीन्स अगर यहाँ 4 एंड 6 जा रहा है तो यहाँ डेफिनेटली क्या जाएगा आपका 2 जाएगा, राइट। अब यहाँ पे 2 गया, दैट इज फ्रॉम रैंक 5, और ये 2 करते यहाँ पे क्या हो गया, ये फिक्स हो गया 4 से, और रैंक 4 इज फ्रॉम 4। अब आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई इस वाले में, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 6 आना पड़ेगा, और 6 किससे आता है आपका रैंक 3 से। यहाँ 6 रखा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा, 4 इज रैंक 4, और यहाँ पे फिर आपका क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, दैट इज रैंक 3, एंड इसका बचा हुआ 4 यहाँ फिक्स हो जाएगा, एंड दैट वुड बी रैंक 4। ठीक है। अब यहाँ से मैं चाहूँ तो F का भी निकाल सकता हूँ, देखेंगे क्वेश्चन में क्या जरूरत पड़ेगा तो हम निकाल लेंगे। जो भी 6 रैंक्स में रिमेनिंग रैंक है ऑब्वियसली आपका F का आना स्टार्ट हो जाएगा, दीज 4 वैल्यूज। ठीक है। नाउ लेट्स फिल द टेबल, सेकेंड टेबल इन द सेम वे। यहाँ पे 6 एंड 5 हमने फिक्स किया था, तो अब यहाँ से अगर नोटिस करें अब मैं कहाँ पे फिल कर सकता हूँ, राइट। अगर थोड़ा सा आप ध्यान दो इसमें, यस, जैसे अगेन इसमें हमने को क्या मिला था, अपने को 10 मिला था, राइट। तो यहाँ पे 10 आपको फिल करना है। ओके, अब यहाँ पे भी हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं, जैसे पीछे वाला ही, जैसे इसमें नोटिस करो तो इस वाले का 10 यहाँ पे नहीं आ सकता, राइट। तो इसमें या तो 4, 2 आएगा, राइट, 4 एंड 2। इसमें अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे दोनों अगेन डिस्टिंक्ट नंबर होने चाहिए, तो 6, 4 यहाँ पे भी 2 चॉइसेस बची है, इसमें भी 6, 4 2 चॉइसेस बची है, तो इन दोनों में 6 एंड 4 ही आएगा, राइट। इन दोनों में 6 एंड 4 चला जाएगा, किसी भी ऑर्डर में जाएगा ये मुझे नहीं पता, 6 एंड 4 डेफिनेटली जाएगा। अब 6 एंड 4 इसमें चला जाएगा, तो यहाँ पे देखो 10 जा नहीं सकता, 4 नहीं जा सकता बिकॉज नीचे कहीं ना कहीं आया होगा, तो यहाँ पे डेफिनेटली क्या फिल हो जाएगा आपका 2 फिल हो जाएगा। 2 अगर यहाँ फिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रैंक 5। अब यहाँ पे 2 आपने फिल कर दिया, तो अब 10 और 4 बचा हुआ है। तो अब इसमें 10 और 4 बचा है, इसमें 6 एंड 4 बचा है, और इसमें आपका 6 एंड 4 बचा है, और इसमें आपका 10 और 1 बचा है। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो इसमें 10 और 1, तो इसमें यहाँ पे ऊपर ऑलरेडी आपका 1 है, तो इसमें आपका 1 नहीं आ सकता, इसमें क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। सो यहाँ पे आपका 10 फिल हो गया, और यहाँ पे आपका रैंक 1 फिल हो गया। तो 10 कैसे आता है, थ्रू दिस रैंक 1, और 1 कैसे आता है, थ्रू दिस रैंक 6। ठीक है, अब ये फिल हो गया आपका। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई बिकॉज 10 एंड 4 में
फिर यहाँ पे 10 नहीं आ सकता, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। तो 4 किससे आता है आपका 4 से, और 10 किससे आता है आपका रैंक 1 से। ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। देन ये 6 एंड 4 है, तो यहाँ पे 4 नहीं आ सकता, यहाँ पे क्या आएगा आपका 6 आएगा। 6 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4। 6 आता है किससे, रैंक 3 से, 4 किससे आता है रैंक 4 से, और यहाँ पे भी 6 एंड 4 है, तो यहाँ पे आपका 4 नहीं आ सकता, यहाँ पे क्या आएगा रैंक 6 आएगा, और यहाँ पे रैंक 4 आ जाएगा। तो 6 आपका किससे आया रैंक 3 से, और 4 किससे आया रैंक 4 से। अगेन इस सेकंड केस में भी f के लिए अगर मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हर एक कॉलम में जो भी मिसिंग आपकी वैल्यू होगी, जो मिसिंग रैंक होगा, दैट विल बी अलॉटेड टू f. Right, I hope this is clear. Now let's go on and see the problems. Who got rank 1 in round 1? Who got rank 1 in round 1? तो round 1 में rank 1 किसका आएगा? इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो E का आ रहा है, सॉरी rank 1, not ये rank 6 है। rank 1 इसके हिसाब से आपका किसका आ रहा है, B का आ रहा है round 1 में, और इस वाले पॉसिबिलिटीज अगर मैं रैंक 1 देखूं तो किसका आ रहा है, ई का आ रहा है। सो द आंसर इज नाइदर ऑफ बी एनी, इट हैज टू बी, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। हु वाज द लास्ट पर्सन टू फिनिश राउंड 2? तो राउंड 2 में लास्ट पर्सन टू फिनिश वुड बी रैंक 6। इसके हिसाब से आपका इट हैज टू बी रैंक 6, राइट। सो 6 रैंक, इसमें 6 रैंक किसको मिला आपका, F को मिला एक्चुअली में, रिमेनिंग आपका पॉसिबिलिटी। और यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करो तो 1 2 3 4 5 हुआ, तो F को ही रैंक 6 मिला। दैट मीन्स यहाँ पे हम यूनिकली बोल सकते हैं बिकॉज इट इज आस्क्ड फॉर राउंड 2 एंड एज इट हैपेंस दोनों पॉसिबिलिटी से रैंक राउंड 2 में रैंक 6 आपको F को ही मिल रहा है। What is the sum of the ranks obtained by F in all the 4 rounds taken together? तो F का अगर मैं टोटल काउंटिंग करूँ तो यहाँ पे सम ऑफ रैंक्स पूछा है, राइट। यहाँ पे 6 मिलेगा, यहाँ पे क्या है 1 2, इसमें 3 बचा हुआ है, इसमें क्या बचा हुआ है आपका 1 बचा हुआ है, इसमें 1 2 3 4 5 बचा हुआ है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे कितना आ रहा है, 5 + 1 6 + 6 12 3 15 आ रहा है सम ऑफ रैंक्स। दिस इज नॉट पॉइंट, सम ऑफ रैंक्स जो भी पूछ रहा है। एंड यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे तो चलो 6 आया, यहाँ कितना आया 5 इज रिमेनिंग, यहाँ पे कौन सा वैल्यू इज 1 इज रिमेनिंग, यहाँ पे कौन सा वैल्यू इज रिमेनिंग 3 इज रिमेनिंग। तो यहाँ अगर मैं एडिशन करूँ तो कितना आ रहा है 6 + 3 9 + 1 10 + 5 15। एंड देन अगेन एज इट टर्न्स आउट इवन इफ यू हैव 2 केसेस, F का सम ऑफ रैंक्स दोनों केसेस से आपका कितना आ रहा है 15 ही आ रहा है। एंड द लास्ट प्रॉब्लम, इन हाउ मेनी राउंड्स डिड B फिनिश अर्लियर दैन D? तो B फिनिश्ड बेटर दैन D इन हाउ मेनी राउंड्स? तो B का D से ऊपर होना चाहिए। सो रैंक 1 राउंड, अब देखो दोनों ही केस, बिकॉज आपका क्या है यूनिक आंसर आना चाहिए, राइट, बिकॉज CBD दिया नहीं है, मतलब मैं किसी एक से भी चेक करूँ तो वही आंसर ले लेना चाहिए मेरे को। तो B का अर्लियर दैन D, तो फर्स्ट राउंड में 1 इज ऑब्वियसली लेस दैन 2, दिस इज फाइन। इसमें 5 4, दिस इज नॉट ओके। देन इसमें 3 है, D का 6 है, दिस इज ऑल्सो फाइन। और B का यहाँ पे 4 है, D का यहाँ पे 3 है, दिस इज नॉट फाइन। तो मेरा आंसर 2 आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं फर्स्ट आवर ओन सेटिस्फैक्शन। तो B एंड D में चेक करें तो 4 इज ग्रेटर देन 2, यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ 5 एंड 3 यहाँ पे भी नहीं चलेगा। यहाँ पे 3 6 फाइन, यहाँ पे 1 4 अगेन फाइन। अगेन एज इट टर्न्स आउट दोनों पॉसिबिलिटी है, बट इस क्वेश्चन का आंसर मेरा यूनिक है। इन हाउ मेनी राउंड्स डिड B फिनिश अर्लियर दैन D? सो वी कैन डेफिनेटली से 2 rounds, and the answer becomes option C. Right, so I hope you understood this set. Again, if you have any doubts, you can just put that in the comments. Thank you.